Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here back with the part 4th of the chapter regional aspiration. Till now we have completed 3 parts of the same chapter. In last class we have discussed context of Jammu Kashmir and specifically external and internal conflicts. We have understood what was the position of Jammu Kashmir, why did Pakistan attack over it, and how did we try to tackle it. All these things we have discussed in last class. Along with that we have also understood that what was the scenario, what was the recommendations of UNO regarding that particular issue between India and Pakistan. After that we have understood that there was the peace settlement, but it was, you can say, it was problematic because people were having separate ideologies regarding independence of Jammu Kashmir. Some were thinking that we are having, you can say, partiality because some states, or you can say especially Jammu Kashmir, was enjoying special status. But even then people of Jammu Kashmir, they were thinking that the privileges which are given to them, they are not enough, right? So this thing we have understood clearly in last class. Today the part, because yesterday the class which we were doing, in that we were having a link, because in previous class also we have understood Jammu Kashmir context. That's why we have understood internal and external conflicts related to Jammu Kashmir. But today the previous pages which are left, in which we are going to discuss the story of Dravidian movement, that we will discuss today. That was left. Okay, this is also an example of regional aspiration, and how did it affect the policies and politics of our country, that we are going to understand now. So let us have a look over it. Dravidian movement आप सभी ने सुना होगा, because what was the problem regarding Hindi? Some people were thinking that Hindi should be our national language, but those people who belong from South India, they were thinking that lot of people of India, they are not able to understand it. So how can we think it can be a national language, right? So what was the Dravidian movement? Let us have a look over it. राइट अब देखो ये सारे के सारे वर्ड आपको इसी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं. अब देखो इट मीन्स क्या है, द नॉर्थ थ्राइव्स इवन एज द साउथ डिकेज. दिस पॉपुलर स्लोगन, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उनके अकॉर्डिंग नॉर्थ कंट्रोल कर रहा है हमारी कंट्री का जो नॉर्थ पार्ट, और साउथ डिके कर रहा है, राइट मतलब उसका पतन हो रहा है. दिस पॉपुलर स्लोगन सम्स अप द डोमिनेंट सेंटिमेंट्स ऑफ वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इफेक्टिव रीजनल मूवमेंट. राइट, ये क्या शो करता है, रीजनल मूवमेंट्स को शो करता है. द द्राविडियन मूवमेंट एट द पॉइंट ऑफ द टाइम. और ये क्या हमें बताता है, ये हमें यही तो बताता है ना कि द्राविडियन मूवमेंट कैसे चला, क्योंकि एज आई टोल्ड यू द मैटर वाज रिलेटेड टू द, यू कैन से, रिगार्डिंग टू द डिसाइड दैट विच लैंग्वेज शुड बी आवर नेशनल लैंग्वेज. बट प्रॉब्लम वाज दैट सम पीपल वर इन द फेवर ऑफ हिंदी, राइट. अब इनको क्या लग रहा है, इन लोगों को ये लग रहा है कि अगर हिंदी नेशनल लैंग्वेज बन जाएगी तो प्रॉब्लम विल बी दैट बिकॉज लॉट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, राइट. सो जो पॉपुलर स्लोगन है क्या सम अप करता है, डोमिनेंट सेंटिमेंट्स ऑफ वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इफेक्टिव रीजनल मूवमेंट. ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनल, मतलब जो एरिया के बेसिस पे उन मूवमेंट्स में सबसे इफेक्टिव सेंटिमेंट शो करता है, राइट. द द्राविडियन मूवमेंट एट द पॉइंट ऑफ द टाइम. और ये कौन सा था, द्राविडियन मूवमेंट, राइट. दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट रीजनल मूवमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स. याद रखना, एंड यू कैन कीप इट एज एन अंडरलाइन फैक्ट, राइट. इसमें क्या होता है, अंडरलाइन, यू कैन अंडरलाइन इट इन योर बुक्स ऑल्सो, कि ये फर्स्ट है जो हमारी कंट्री में रीजनल मूवमेंट हुआ इंडियन पॉलिटिक्स में, one of the first, right. Though some sections of this movement had ambitions of creating a Dravida nation, the movement did not take to arms. अब देखो ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑन द बिहाफ ऑफ देयर लैंग्वेजेस पीपल आर थिंकिंग कि उनकी ना अलग से एक नेशन बना दिया जाए, द्राविड नेशन, द्राविडा नेशन. ओके, had ambitions of creating a Dravida nation, the movement did not take to arms. It used democratic means like public debates and the electoral platform to achieve its ends. अब देखो इसका अच्छी बात क्या थी, इसमें did not take to arms, इन्होंने हथियारों का यूज नहीं किया, उन्होंने डेमोक्रेटिक मेथड्स यूज किए. कैसे, जैसे पब्लिक डिबेट्स हो गई, इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म्स हो गए, राइट, टू अचीव इट्स एंड. क्योंकि देखो पीसफुल तरीके से अगर आप वर्क करते हो तो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी पॉइंट ऑफ व्यू आपकी आइडियोलॉजीज होती है, आपका वर्किंग स्टाइल होता है, उसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है इफ यू आर डूइंग एनीथिंग इन अ नॉन वायलेंटिक एस्पेक्ट.
सो ये लोग भी क्या कर रहे थे, द सेम थिंग वाज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। वो लोग भी क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट यूजिंग आर्म्स। वो क्या यूज कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक मेथड्स यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक डिबेट्स एंड इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म, राइट। These strategies paid off as the movement acquired political power in the state and also became influential at the national level. अब ये स्ट्रैटेजी ने वर्क किया, क्योंकि देखो ये स्ट्रैटेजी स्लोली एंड ग्रेजुअली वर्क करती ही करती है, राइट। देखो अगर आप पीसफुल तरीके से, अगर आप साइलेंटली अपना वर्क करते जाओगे ना, है ना, तो कहीं ना कहीं आप वो चीजें अचीव कर पाते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, राइट। तो सेम थिंग यहां पर भी हुई है। अभी लोगों ने अगर पीसफुल तरीके से वर्क किया तो अब इन्होंने कोई वॉलेंटिक एस्पेक्ट भी यूज नहीं किए, तो इस मूवमेंट ने फाइनली वो चीजें गेन की जो चाह रहा था, जैसे पॉलिटिकल पावर स्टेट में, राइट, एंड ऑल्सो बिकेम इन्फ्लुएंशियल एट द नेशनल लेवल। और नेशनल लेवल पे भी ये लोग क्या बन गए, इंपॉर्टेंट बन गए, राइट। अब उसके बाद द द्राविडियन मूवमेंट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द्राविड़ कझगम अंडर द लीडरशिप ऑफ तमिल सोशल रिफॉर्म्स ईवी रामास्वामी पेरियार। और इन्होंने क्या बोला, ये मूवमेंट क्यों चला, ये मूवमेंट इसलिए चला क्योंकि इनको फॉर्मेशन करनी थी द्राविड़ कझगम, राइट, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ना द्राविडियन स्टेट बना दिया जाए, राइट। तो इन्होंने क्या बोला कि एक लीडरशिप में, रामास्वामी पेरियार की लीडरशिप में, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये चाह रहे थे कि एक अलग से फॉर्मेशन होनी चाहिए द्राविडियन मूवमेंट की, और सॉरी द्राविडार कझगम की, राइट। अब उसके बाद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांगली अपोज्ड द ब्राह्मण्स डोमिनेंस एंड affirmed regional pride against the political, economic and cultural domination of the north। और इसके अलावा इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट देखो पॉइंट्स क्या थे, अगर आप इंपॉर्टेंस गेन करना चाहते हो कोई पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि देखो आप लोगों ने पढ़ा था रीजनल एस्पिरेशंस कैसे इंक्रीज हो रही थी, पॉलिटिकल पार्टीज इंक्रीज हो रही थी, तो क्यों, बिकॉज दे वर पॉइंटिंग आउट द रीजनल प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, जिनसे हो सकता है नेशनल लीडर्स अवेयर ही नहीं हो। दैट्स व्हाई दे वर एबल टू कनेक्ट देमसेल्फ विद द कॉमन पीपल। और पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा जरूरी है दैट यू शुड कनेक्ट योरसेल्फ विद द कॉमन पीपल सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड यू। समझ आया। तो यहां पर भी इन लोगों ने क्या वर्क किया, ये इन्होंने समझा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां है। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि जो ब्राह्मण पीपल है उनका डोमिनेंट है, राइट। तो इसने उस चीज को, सोसाइटी को एनालाइज किया और फाइनली बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्ट्रांगली अपोज करेगी किसको, ब्राह्मण डोमिनेशन को, राइट। और क्या बताएगी, अफर्म रीजनल प्राइड, जो हमारा रीजन का, एरिया का प्राइड है। क्योंकि देखो चाहे कोई भी पर्सन इंडिया के किसी भी पार्ट से बिलोंग करता है, ही नो डाउट ही और शी विल बी हैविंग अ प्राइड दैट यस दे विल बी प्राउडली सेइंग दैट यस वी आर इंडियन, आई एम इंडियन, है ना। बट कहीं ना कहीं जब रीजन की बात आ जाती है ना, एरिया की बात आती है, तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा अफेक्शन होता है, वो सभी की मेंटालिटी में होता है। तो इन्होंने वही बात बोली कि जो हमारा रीजनल प्राइड होगा ना, हम उसको मेंटेन करके रखेंगे, जो हमारी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में होगा, इकोनॉमिक में होगा और कल्चरल डोमिनेंट में होगा, राइट। और किसके अगेंस्ट में, जो नॉर्थ का डोमिनेशन एस्टैब्लिश हो रहा है ना, क्योंकि एज आई टोल्ड कि हिंदी के अकॉर्डिंग इन लोगों को क्या लग रहा था कि हिंदी के अकॉर्डिंग इनका नॉर्थ वालों का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हिंदी नॉर्थ इंडियन लोग ज्यादा समझ पा रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि हम एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसा प्लेस हम इंट्रोड्यूस करेंगे जहां पर ब्राह्मण्स का डोमिनेंस नहीं होगा, ब्राह्मण डोमिनेंस को अपोज करेंगे, और उसके अलावा जो एक नॉर्थ का डोमिनेशन एस्टैब्लिश हो गया ना, उसको भी हमें क्या करना है, स्टॉप करना है, राइट। इनिशियली द द्राविडियन मूवमेंट स्पोक इन टर्म्स ऑफ द होल ऑफ साउथ इंडिया, हाउएवर लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अदर स्टेट्स लिमिटेड द मूवमेंट टू तमिलनाडु। अब देखो क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब ये मूवमेंट चला तो फिर क्या हुआ, स्टार्टिंग में इसको सपोर्ट मिला होल ऑफ द साउथ इंडिया का, बट प्रॉब्लम कहां हुई, बाद में पर्टिकुलरली लिमिटेड हो गया, इसने खुद को समेट लिया कहां पर, तमिलनाडु तक। अगर सपोर्ट नहीं मिला तो लिमिटेड रह गया सिर्फ तमिलनाडु तक, फाइनली गॉट इट। अब उसके बाद द डीके मतलब द्राविडियन कझगम स्प्लिट एंड द पॉलिटिकल लेगेसी ऑफ मूवमेंट वाज ट्रांसफर टू द्राविड मुनेत्र कझगम। ये पॉलिटिकल पार्टी थी ना, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, जब हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी प्रीवियस चैप्टर्स में, तो हमने क्या पढ़ा था कि फेडरलिज्म का कंसेप्ट था और हमारी कंट्री में बार्गेनिंग फेडरलिज्म का कंसेप्ट आता है, जब स्टेट लेवल की पार्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन करना शुरू कर देती है, जब नेशनल लेवल पे किसी भी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो यहां पर रीजनल पार्टीज का इंपॉर्टेंस इंक्रीज होना शुरू होता है। और इन्हीं बिहाफ पे आप देखोगे कि जो डीएमके पार्टी है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ रीजन एरियाज, राइट। अब देखो द डीएमके मेड इट्स एंट्री इनटू पॉलिटिक्स विद अ 3 pronounced agitation in 1953 and 1954। इसने अब क्या करना शुरू कर दिया, पहले देखो ये लोग क्या कर रहे थे, जस्ट दे वर डिमांडिंग फॉर द सेपरेशन, यू कैन से, राइट। बट अब उन्होंने क्या कर लिया,
बिकॉज ऑफ द आइडियाज, बिकॉज ऑफ द सपोर्ट, देखो कितना सपोर्ट है ना, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अब उन्होंने एजिटेट करना शुरू कर दिया, राइट, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और पॉलिटिक्स में एंट्री शुरू हो गई। समझ आया? फर्स्ट इट डिमांडेड द रिस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल नेम ऑफ कलाकुडी रेलवे स्टेशन विच हैड बीन रीनेम्ड दलामीपुरम आफ्टर एन इंडस्ट्रियल हाउस फ्रॉम द नॉर्थ। अब देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो रीजन क्या कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है कि अब देखो ये लोग नेम चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो नेम चेंज हुआ है किसका, कलाकुड़ी का, वो क्या था, वो साउथ इंडियन नेम था, बट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद नेम चेंज हुआ वो नॉर्थ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए अब इन्होंने क्या सोचा कि हमें नॉर्थ इंडिया के इन्फ्लुएंस को कंप्लीटली खत्म करना है अपने एरिया से, इसीलिए क्या किया कि उसका नेम चेंज कर दिया जाए। फाइन। उसके बाद फिर क्या हुआ, द डिमांड ब्रॉट आउट इट्स अपोजिशन टू द नॉर्थ इंडियन इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिंबल्स। और इसके अलावा क्या डिमांड भी आई कि नॉर्थ इंडिया के जो इकोनॉमिक और कल्चरल सिंबल्स है उसके अगेंस्ट भी डिमांड राइज हुई, राइट। द सेकेंड हेजिटेशन वॉज फॉर गिविंग तमिल कल्चरल हिस्टोरी ग्रेटर इंपॉर्टेंस इन द स्कूल करिकुलम। और देखो उसके अलावा क्या हुआ, देखो अगर आप लोगों को आपकी स्टेट के कल्चर के बारे में, हेरिटेज के बारे में बताया नहीं जाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन को कैसे पता चलेगा व्हाट वाज हैपनिंग हियर। अब सोचो अगर हम हमारे स्टूडेंट्स को फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया का पढ़ाना बंद कर दें तो क्या होगा, स्टूडेंट्स विल नॉट बी अवेयर ना व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रीडम एंड हाउ मच स्ट्रगल वी हैव डन जस्ट टू अचीव इट। कितने फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, हम इस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे ना कभी। तो यहां पर तमिलनाडु के लोगों के माइंड में क्या आया कि हमें क्या करना है, हमें सबसे इंपॉर्टेंस किस चीज को देना है, हमारे कल्चर को। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, देखो आप लोगों ने जब हिटलर के बारे में कभी स्टडी किया हो तो हिटलर ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि अगर आपको ना आपके यंग माइंड्स को ट्रेन करना है तो आप एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दो और आप ऑटोमेटिकली वैसे ही सिटीजन प्रोड्यूस करोगे जैसा सिस्टम आप कंट्री में चाह रहे हो, क्योंकि एजुकेशन इज दैट टूल, दैट पावरफुल वेपन। इसलिए अब इन्होंने क्या डिमांड रखी, अब इन्होंने डिमांड रखी कि जो तमिलनाडु है ना उसके कल्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए और इसलिए करिकुलम उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन होना चाहिए, राइट। मतलब एक तो क्या था, इन्होंने चीजों के जो नेम नॉर्थ इंडिया का इंपैक्ट दिख रहा था उसको चेंज कर दिया। उसके बाद क्या होना चाहिए, जो तमिलनाडु है उसके करिकुलम में उसकी हिस्ट्री पर इंपॉर्टेंस दिया जाए, राइट। और थर्ड क्या था, द थर्ड एजिटेशन वाज अगेंस्ट द क्राफ्ट एजुकेशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और थर्ड किसके रिगार्डिंग था, जो क्राफ्ट एजुकेशन थी। स्टेट गवर्नमेंट क्या चाह रही थी, विच इट एलेक्ट वाज लिंक टू दी ब्राह्मणिकल सोशल आउटलुक, जो कहीं ना कहीं क्या दिखा रही थी, ब्राह्मण का डोमिनेंस शो कर रही थी, बट ये लोग उसके अगेंस्ट थे। तो इन्होंने अब क्या बोला, जो क्राफ्ट एजुकेशन स्कीम थी सोशल स्टेट गवर्नमेंट की तमिलनाडु की, उसके अगेंस्ट में लोगों ने एजिटेट किया, प्रोटेस्ट किया। इट ऑल्सो एजिटेटेड अगेंस्ट मैनकाइंड हिंदी द कंट्रीज ऑफिशियल लैंग्वेज। अब यही वो कंटेक्स्ट आ गया जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने हिंदी के रिगार्डिंग क्या किया, कंट्री में प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि हमें कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी बनानी नहीं। आज भी आप लोग देखते हो इस चीज का इन्फ्लुएंस है हमारी कंट्री में। ऑफिशियल टास्क आप किस में देखते हो, सारे के सारे इंग्लिश में होते हैं ना, क्यों, क्योंकि इन सारे मूवमेंट्स का असर है उस चीज के ऊपर, राइट। अब देखो फिर क्या है, द सक्सेस ऑफ द एंटी हिंदी एजिटेशन ऑफ 1965 एडेड टू द डीएमके पॉपुलैरिटी। और इस वजह से, क्योंकि उन्होंने साउथ इंडिया में एक पॉइंट दे दिया लोगों को कि हिंदी को हमें ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनने देना है, मतलब क्योंकि अगर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी बन जाएगी तो क्या होगा, लोग ऑफिशियल वर्क किस में होगा, हिंदी में होगा, राइट, और लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इन्होंने जब सक्सेस हुई ना एंटी हिंदी एजिटेशन की, तो इसकी वजह से पॉपुलैरिटी, क्योंकि आज आप लोग देखते हो ऑफिशियल वर्क इंग्लिश में हो रहा है, तो अनडाउटली इट इज द सक्सेस ऑफ दोज पीपल हु आर अगेंस्ट द हिंदी, राइट। तो फाइनली क्या हो गया, इस मूवमेंट ने, इस एजिटेशन ने जो पॉपुलैरिटी थी डीएमके की वो कई ज्यादा इंक्रीज कर दी। समझ आया? अब उसके बाद सस्टेन पॉलिटिकल एजिटेशंस ब्रॉट द डीएमके टू पावर इन द असेंबली इलेक्शंस ऑफ 1967। और फाइनली क्या हुआ, फाइनली जब इलेक्शंस हुए 1967 में तो डीएमके पावर में रिस्टोर हो गई, पावर को गेन करने में एबल हो गई, राइट। Since then the Dravidian parties have dominated the politics of Tamil Nadu। और तब से आप लोग देखते हो जो रीजनल पार्टी ना डीएमके की, जो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टीज में काउंट होती है डीएमके, बाद में इसमें स्प्लिट भी होगा, एआईडीएमके भी बनेगी, ठीक है। अब उसके बाद थ्रू द डीएमके स्प्लिट आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स लीडर अन्नादुरई, द इन्फ्लुएंस ऑफ द्राविडियन पार्टीज इन तमिलनाडु पॉलिटिक्स एक्चुअली इंक्रीज्ड। फिर क्या हुआ, हालांकि जो डीएमके स्प्लिट हुआ ना, तो डीएमके स्प्लिट के बाद मतलब डिवाइड होएगी, इट मीन सिंपली,
है ना। तो इनकी डेथ के बाद जब सी अन्नादुराई जो इसके लीडर थे, उनकी डेथ के बाद द्राविडियन पार्टी का तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंस और ज्यादा इंक्रीज हो गया। और फिर क्या हुआ, आफ्टर द स्प्लिट देयर वर टू पार्टीज, डीएमके एंड ऑल इंडिया अन्ना द्राविड मुनेत्र कझगम, AIADMK, you can consider it all India अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम, that claimed द्राविडियन लिगेसी। और उसने क्या बोला कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअल में द्राविडियन जो लिगेसी है, परंपरा है, हम उसको चला रहे हैं। मतलब देखो इतना इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो गया इनका पॉलिटिक्स में कि अब ये रीजनल कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, अब ये रीजनल बेसिस पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रही हैं, राइट। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ, अब इसका इंपॉर्टेंस ये हुआ कि रीजनल पार्टीज का इंपॉर्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और डीएमके वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रीजनल पार्टीज इन द कंट्री। और इसीलिए क्या होगा, इलेक्शंस में 1967 में क्या जीत जाएगी, पावर में आ जाएगी। बट जैसा हमारी कंट्री की लिगेसी रही है ना कि जब भी पावर में आएंगे तो बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा क्या होगा, डिवीजन होगा ही होगा, समझा। और यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी डीएमके में स्प्लिट हो गया। डीएमके में जब स्प्लिट हुआ तो डीएमके की एक पार्टी बनी, दैट वाज AIDMK, ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ मुनेत्र कझगम। और अब ये भी क्या बोल रही है, क्लेम कर रही है कि हम द्राविडन लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं, समझ आया। उसके बाद both these parties have dominated politics in Tamil Nadu for the last 4 decades। और देखो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कि हमारी कंट्री की नेशनल लेवल पार्टीज वहां पे फाइट करती है इलेक्शंस, नो डाउट इन दैट, बट वो इतनी पावरफुल पोजीशन में होती ही नहीं कि वो इन लोगों को डिफीट कर सके, समझ आया। वो इतनी पावरफुल पोजीशन में नहीं होती कि वो इन रीजनल पार्टीज को डिफीट करके पावर को गेन कर लें। ये है रीजनल इंपॉर्टेंस, रीजनल का, क्योंकि देखो अगर रीजन के बेसिस पे आपने लोगों की सेंटिमेंट्स को कैप्चर कर लिया तो अब देखो उन लोगों के माइंड में क्या आता है कि क्योंकि ये लोग हमारे से ज्यादा क्लोज हैं, दे अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स बेटर देन द नेशनल लीडर्स, सो व्हाई शुड वी गिव आवर वोट टू नेशनल लीडर्स। जब हमारे आसपास के लोग हमारी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं एंड दे आर इन दैट मच स्ट्रॉन्ग पोजीशन, देन व्हाई शुड वी वेस्ट आवर वोट, राइट। इसीलिए देखो कितना इंपॉर्टेंस है कि 4 डिकेड से या तो डीएमके या AIADMK यही पॉलिटिक्स को कैप्चर किए हुए हैं। और ये रीजनल एस्पिरेशन की स्ट्रेंथ आपको शो कर रहा है, उसकी स्ट्रांगनेस आपको शो कर रहा है, राइट। अब फिर उसके बाद सिंस 1996 वन ऑफ दीज पार्टीज हैज बीन अ पार्ट ऑफ द रूलिंग कोalition एट द सेंटर। और 1990 देखो इतना इंपॉर्टेंस है, देखो जब इनका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो लेट अस हैव अ लुक व्हाट विल बी द सिनेरियो ऑफ लोकसभा इलेक्शंस। तो वहां पर भी क्या होगा, बहुत सारे लोग उनके एमपी भी बन जाएंगे, समझ आया। और सोच के देखो अगर एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली तो अब जब वो अलायंस करने की कोशिश करेंगे तो ऐसी ही रीजनल पार्टीज का इंपॉर्टेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं एरिया वाइज, वो काफी सारी वोट्स को सिक्योर कर लेती हैं इन द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा। और जब गवर्नमेंट बनाने की बारी आती है ना तो गवर्नमेंट को इनके अलावा कोई ऑप्शन दिखता ही नहीं है, समझ आया। और जब कोई और ऑप्शन नहीं दिखता है तो उनको इनके साथ नेगोशिएट करनी पड़ती है कि आप हमें अपने एमपीज दे दो, अपना सपोर्ट दे दो, हम आपको बदले में क्या देंगे, मिनिस्ट्रियल अथॉरिटी देंगे। इसको क्या बोलते हैं, एक टाइप से बार्गेनिंग फेडरलिज्म, समझ आया। यानी स्टेट बार्गेनिंग फेडरलिज्म क्या कि स्टेट इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए कि वो सेंटर के साथ बार्गेन कर रहे हैं। और यहीं से चीजें हमारी पॉलिटिक्स में अराइज होती हैं। जैसे कोalition गवर्नमेंट बनी तो क्योंकि इनकी पावर, इनकी पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है रीजनल पार्टीज की, तो अब ये क्या करेंगे, अब ये सेंटर के साथ नेगोशिएट करेंगे और कोalition में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी कंट्री के, राइट। इन द 1990s मेनी अदर पार्टीज हैव इमर्ज्ड। और 1990s में क्या हुआ, बहुत सारी पार्टीज और इमर्ज हो गई, नई नई पार्टीज बनना शुरू हो गई, राइट। अब उसके बाद क्या है, अब देखो जैसे कि मुरमराची द्राविड़ मुनेत्र कझगम, मतलब MDMK, ये उनकी लैंग्वेज में ही नेम है। पटाली मक्काल कचाई PMK और देशियाल मरपाकाऊ ऑफ रीजनल प्राइड इन द पॉलिटिक्स ऑफ तमिलनाडु, मतलब रीजनल बेसिस पे उनके नेम्स गिवन है। आप याद रख सकते हो DMDK PMK, आप इस तरीके से नेम्स याद रख सकते हो। अब अलग अलग पार्टीज, मतलब अब देखो जब लोगों को लगेगा कि रीजनल एस्पिरेशंस के बेस पे इतना इंपॉर्टेंस मिल रहा है पॉलिटिक्स में, तो वो लोग भी क्या करेंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज फिर से फॉर्म होंगी, राइट। All these parties have kept alive the issue of regional pride in the politics of Tamil Nadu। और इन पार्टीज का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इन सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बताया है कि नेशनल लेवल पे भी रीजनल इंपॉर्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करना है, समझ आया। यानी रीजनल प्राइड को इंपॉर्टेंटली लोग रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं।
initially seen as a threat of Indian nationalism, regional politics in Tamil Nadu is a good example of the compatibility of regionalism and nationalism. अब देखो पहले क्या लगा कि अगर ऐसा सिस्टम राइज होगा ना कि रीजनल पार्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं तो नेशनलिज्म के कहीं ना कहीं अगेंस्ट होगा, क्योंकि देखो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजनलिज्म होगा ना, क्योंकि देखो एक्सट्रीम की कोई चीज कभी भी अच्छी नहीं होती है। अगर आप एक्सट्रीम रीजनलिज्म को फॉलो करोगे तो आप ऑफ कोर्स नेशनलिज्म के अगेंस्ट जाओगे, फिर आप अपने एरिया से ही लव और अफेक्शन रखोगे, आप नेशन से नहीं रख पाओगे, राइट? तो स्टार्टिंग में जब ये चीजें अराइज होती है ना हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स में, तो यही सोचा जाता है कि कंट्री की पॉलिटिक्स में अब क्या होने वाला है, रीजनल पार्टीज का इंपॉर्टेंस इंक्रीज होगा और इस वजह से कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के लिए थ्रेट क्रिएट हो जाएगा। बट फिर बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड ना इन द स्टार्टिंग ओनली कि हमारी कंट्री बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करती है यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी का, तो इस प्रिंसिपल की वजह से और जो बैलेंस हमने बनाया है ना, इट इज एबल टू क्रिएट अ वेरी गुड एग्जांपल कि रीजनलिज्म और नेशनलिज्म के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना है एंड हाउ कैन वी वर्क टुगेदर विद बोथ ऑफ द फीलिंग्स, राइट? तो ये था आपका कंटेक्स्ट पूरा का पूरा तमिलनाडु का, इसमें कैसे कैसे मूवमेंट चले, क्या क्या यहाँ पे इश्यूज थे और कैसे कैसे रीजनल पार्टीज इंपॉर्टेंस गेन करती हैं और वो इस पोजीशन में पहुंच जाती है कि वो नेशनलिस्ट जो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब देखो आप लोगों ने यहाँ पर रामास्वामी पेरियार का नाम सुना था, ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर, जिनको नायकर का टाइटल मिला हुआ है, सॉरी पेरियार का टाइटल मिला हुआ है, रामास्वामी नायकर, इनको पेरियार, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ा था इनके बारे में, तो अब ये एक पर्सन थे कौन? अब देखो रामास्वामी नायकर 1879 टू 1973 नोन एज पेरियार। पेरियार का टाइटल अब आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, हु इज हैविंग द टाइटल ऑफ Periyar, then you will have to explain E.V. Ramaswamy Naikar. तो the respected strong supporter of the atheism. Atheism क्या होता है? नास्तिकतावाद, जो लोग ईश्वर में, गॉड में बिलीव नहीं करते। फेमस फॉर इज एंटी कास्ट स्ट्रगल, अपनी एंटी कास्ट स्ट्रगल के लिए बहुत पॉपुलर रहे। एंड रीडिस्कवरी ऑफ द्राविडियन आइडेंटिटी, मतलब द्राविडियन इंपॉर्टेंस आप लोगों ने पढ़ा ना, ये द्राविडियन मूवमेंट क्यों चल रहा है? जो द्राविडियन कल्चर है, जो साउथ इंडिया का कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, नॉर्थ इंडिया के डोमिनेंस को खत्म करने के लिए, राइट? तो उसके सपोर्टर, उसको एक टाइप से किसके रिगार्डिंग है? अपने एंटी कास्ट स्ट्रगल के लिए। और रीडिस्कवरी, मतलब एक चीजें कहीं ना कहीं, देखो रीडिस्कवरी का मतलब क्या होता है, वो चीजें थी बट वो कहीं ना कहीं औरों के इन्फ्लुएंस की वजह से वो खत्म होती चली गई। तो द्राविडियन जो मूवमेंट है, द्राविडियन मूवमेंट है, वो वही है कि द्राविडियन का इंपॉर्टेंस था बट नेशनलिज्म की वजह से कहीं ना कहीं और नॉर्थ इंडिया की इंपॉर्टेंस की वजह से ये इंपॉर्टेंस डिक्रीज हो गया। बट यहाँ पे क्या है, दोबारा से उन चीजों को रीडिस्कवर किया जा रहा है। इनिशियली आ वर्कर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, स्टार्टिंग में कांग्रेस पार्टी के वर्कर रहे, राइट? स्टार्टेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये भी याद रखना है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने शुरू किया? ईवी रामास्वामी नायकर। लेड द एंटी ब्राह्मण मूवमेंट, क्योंकि इनकी डिमांड यही थी ब्राह्मण्स के डोमिनेशन को खत्म करना है, तो उस मूवमेंट को लेड किया। वर्कड फॉर द जस्टिस पार्टी, जस्टिस पार्टी के लिए पढ़ा अभी आप लोगों ने, जस्टिस पार्टी भी बनी तो उसके लिए भी वर्क किया। एंड लेटर फाउंड द्राविड कशगम, जो डीएम आप लोगों ने द्राविड कशगम पढ़ी, उसको फाउंड किया। अपोज टू हिंदी एंड डोमिनेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया, क्योंकि हिंदी किसको रिप्रेजेंट करे? दैट इज रिप्रेजेंटिंग नॉर्थ इंडिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसको एक टाइप से अपोज किया, हिंदी को भी अपोज किया और नॉर्थ इंडिया के इन्फ्लुएंस को भी अपोज किया, डोमिनेशन को भी अपोज किया। प्रोपाउंडेड द थिस्ट एंड नॉर्थ इंडियन एंड ब्राह्मण एंड आर्यस। उसके बाद इन्होंने किस किस सारी की चीजों को, इंडियन जो नॉर्थ इंडिया है उसके डोमिनेंस को एक टाइप से क्रिटिसाइज किया। जो थिस्ट मतलब जो आस्तिकवाद होते हैं ना, जो गॉड में ट्रस्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट में बातें बोली। और जो ब्राह्मण्स और आर्यंस हैं उन लोगों को भी एक टाइप से क्रिटिसाइज किया, उन लोगों पे भी फेवर नहीं किया, राइट? सो दिस वाज E.V. रामास्वामी नायकर who got the title of Periyar. It means the respected strong, right? After that, अब देखो आई थिंक यहां तक आप लोगों को क्लियर है, फाइन। अब हम लोगों ने क्या समझ लिया कि रीजनल एस्पिरेशंस कैसे कैसे हमारी कंट्री में इंक्रीज हो रही हैं और कैसे कैसे वो हमारी कंट्री के पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। आई होप अब यहां तक आपको क्लियर है। अब देखो ये सारी की सारी चीजें, कश्मीर एसेट्स टू इंडिया, ये क्या दिखा रहा है कि कश्मीर का देखो जवाहरलाल नेहरू है, राइट? ये कंटेक्स्ट आपको क्या दिखा रहा है? ये सारे का सारा कंटेक्स्ट आपको क्या दिखा रहा है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो इंडिया का पार्ट बन गया। तो यहां तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स आल्सो वी हैव डिस्कस्ड, ओके? So I hope till here everything is completely clear to all of you. But if you are having doubts, you can ask your doubts in comment section, right? Feel free to ask it. Okay, in the next part we will start from next video. If you feel that this content is valuable for you,
then please like the video and subscribe the channel. We will meet in next video. Till then, keep learning, keep studying, and definitely stay connected. Thank you. Thanks a lot.